دماغ کی لکیر کے اندر جیسے آپ کو یہ اس طریقے سے یہ والا سائن نظر آ رہا ہے، تو اس کو خدا رہا آپ نے کوئی فش سائن نہیں سمجھ لینا، آپ نے خود اپنے مائنڈ میں بنا لینا ہے کہ یہ شاید کوئی فش سائن ہے۔ یہ یاد رکھیں کسی بھی لائن کے اندر کی طرف فش سائن نہیں ہوتا، اس کو جزیرہ بولتے ہیں۔ اور اگر دماغ کی لائن میں اتنا بڑا جزیرہ ہو تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ذہنی ٹینشن آپ کو مل سکتی ہے۔ زندگی کی لائن پہ جزیرہ ہو جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی زندگی میں کسی بہت بڑی بیماری کا بتاتا ہے، یا حادثات کا بتاتا ہے، یا زندگی میں روپے پیسے کے لاس کا بتاتا ہے، سٹرگل کا بتاتا ہے۔ دیکھیں انگوٹھے کے اگر دوسرے پور پہ یہ ہوتا ہے انگوٹھے کا دوسرا پور، یہاں پہ دیکھیں 1 2 اور پھر 3، یعنی کہ جو انگوٹھے کا یہ والا پارٹ ہے یہ 1 حصہ 2 حصہ اور 3 حصہ، اگر دوسرا پور 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو یہ سٹرگل کو بڑھا دے گا۔ یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے بڑے انتہا پسند ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اپنا کام لے کے ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو سٹرگل بہت کرنی پڑتی ہے۔ اسپیشلی زندگی کے جو پہلے 30-35 سال ہیں وہ ان کے کافی سٹرگل کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن بھی تقریباً 27-28 سال کی عمر تک مدھم ہی ہے۔ تو 27-28 سال کی عمر تک ان کو بہت سٹرگل، بہت مشکلات دیکھنی پڑیں گی اگر انگوٹھے کا سیکنڈ پور جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کی سن فنگر اور آپ کی جوپیٹر فنگر، یہ ہوتی ہے جوپیٹر فنگر، یہ ہوتی ہے سن فنگر، یہ دونوں ایکول سائز میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انتہائی بیلنس شخصیت ہوتے ہیں۔ اسپیشلی اگر آپ کی سیٹرن کی فنگر بھی بالکل سیدھی ہو، اسٹیٹ ہو، انگلیاں ٹیڑھی میڑھی نہ ہو، تو ایسے لوگ بہت ہی زبردست ویژن رکھتے ہیں، اپنا گول اچیو کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں، زندگی میں اچھی دولت کماتے ہیں اور زندگی بڑی زبردست طریقے سے گزارتے ہیں۔ تو روپے پیسے کے لحاظ سے، زندگی میں کامیابیوں کے لحاظ سے اگر آپ کی یہ انگلیاں بالکل بیلنس ہوں گی اور ان میں یہاں پہ سوراخ نہیں ہونے چاہیے، اگر یہاں سے روشنی نکل رہی ہے، ان کی انگلیاں آپس میں ملتی نہیں ہے، تو آپ کا روپیہ پیسہ ضائع ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ فیمیل کے ہاتھ میں شادی کی 3 لائنز ہوں، جیسے آپ کو یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے، پہلے چھوٹی لائن نظر آ رہی ہے، اس کے بعد یہ لمبی لائن ہے، اور اس کے بعد یہ لائن آگے سے بریک ہو کے یوں چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ بھی بریک ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو لائن ہے یہ ہے تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر پھر ایک ریلیشن کی لائن موجود ہے تو ان کا سیکنڈ ریلیشن بھی بریک ہو جائے گا، حتیٰ کہ جو ان کا تھرڈ ریلیشن ہوگا اس میں بھی ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی اور وہ بھی ٹوٹنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں 3 شادی کی لائنز ہو اور نیچے والی دونوں لائنیں یہ بتاتی ہیں کہ نیچے 2 ریلیشن تو لازمی ان کے ٹوٹیں گے، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے پھر کامیاب ہوتا ہے۔ سیٹلمنٹ کو آپ ایک نظر سے ہی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے اس آدمی آپ کو یہ قسمت کی لائن یہاں سے اگر نکلتی ہوئی اگر محسوس ہو نا کہ یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریا، اگر آپ کی قسمت کی لائن مون ماؤنٹ کے بالکل سینٹر سے یہاں سے سٹارٹ لے، یہاں سے سٹارٹ لے، تو 100% ایسے لوگوں کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ باہر کے ملک ضرور جاتے ہیں، اور اسپیشلی جب مون ماؤنٹ سے کوئی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ یوں ٹچ ہو جائے تب بھی آپ 100% باہر کے ملک جائیں گے۔ اور اگر زندگی کی لائن سے کوئی لائن مون ماؤنٹ کی طرف نکل آئے اور زندگی کی لائن اس طریقے سے 2 شاخہ ہو جائے تب بھی آپ کی فورن سیٹلمنٹ لازمی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ بیرون ملک جاتے بھی ضرور ہیں اور وہاں جا کے سیٹل بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کے پاس بہت دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا اگر آپ کے انگوٹھے پہ یہاں پر آنکھ بن رہی ہو، لیکن بعض دفعہ آپ کی انگلیوں پر بھی یہ آنکھ بن رہی ہوتی ہے، جیسے اس ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تقریباً ہر انگلی پہ آنکھ بن رہی ہے۔ اگر آپ کی یہاں پہ بھی آنکھ بنتی ہے، 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 اور انگوٹھے کے بھی فرسٹ پور پہ آنکھ بنتی ہے، تو زندگی بھر ایسے لوگ
दौलत अच्छी कमाते हैं, रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा आता है और ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंतहाई मुबारक, इंतहाई साद साइन है आपके हाथ में। जॉब के लिहाज से या ज़िंदगी में किसी बड़ी कामयाबी के लिहाज से अगर आपकी एक लाइन यूँ निकले और एक लाइन यूँ निकले, इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल का साइन बने, तो आपकी ज़बरदस्त जॉब हो सकती है। अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर अता फरमाएगा अगर ये इस तरीके से जुपिटर माउंट पर ट्रायंगल का साइन आपको नजर आता है बना हुआ। और ये ट्रायंगल इस तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसे लोग बड़े साहिब इल्म होते हैं, प्रोफेसर, बड़े बड़े वकीलों के हाथ में, जजों के हाथ में आपको ये साइन नजर आएगा। वेल एजुकेटेड और ऐसे लोगों के पास रूहानियत भी होती है, जो मजहबी पेशवा होते हैं, रूहानी पेशवा जो होते हैं, उनके हाथ में भी जुपिटर माउंट पर ये ट्रायंगल का साइन आमतौर पर ज़रूर देखा गया है। इंतहाई मुबारक साइन है, रुपये पैसे के लिहाज से भी, इज़्ज़त के लिहाज से भी, शोहरत के लिहाज से भी और बड़े मरतबे मुकाम के लिहाज से इसको बहुत अच्छा माना गया। देखिए अंगूठे के लास्ट फोर पे ना, यहाँ पे ये जो रिंग बन रहा है, ये होता है फैमिली रिंग। अगर ये इस तरीके से जंजीर बन रही हो ना, तो जो बड़े डार्ट होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे डार्ट होंगे वो बेटियों के होंगे। और इसके अलावा वीनस माउंट पे ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये लाइनें जितनी आपको वीनस माउंट पे नजर आए, इतनी ही अल्लाह ताला आपको औलाद भी ज़्यादा देता है और आपको कामयाबियां भी मिलती हैं। ये कामयाबी की लकीरें भी हैं, ये औलाद की भी लकीरें। तो आप इसको चेक कर लें आपके हाथ में यहाँ पे कितनी लाइन है। वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें आपके हाथ में कितनी है। जो मध्यम लाइन होंगी वो लड़की की होंगी और जो गहरी डार्क लाइन होंगी वो बेटों की होंगी। तो तकरीबन ये जितने आपके बच्चे होंगे आमतौर पर इतनी ही लाइनें वीनस माउंट पर आपको नजर आएंगी। इसको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो मैंने बात बताई है बिल्कुल ठीक बताई है। ये होता है आपका केटू माउंट। केटू माउंट पे अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से फिश का साइन बना हो, ठीक है जी, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया, ठीक है जी। और ये फिश आपको क्या देगी केटू माउंट पे, अगर यहाँ पे आपको फिश का साइन इस तरीके से बना नजर आता है और फिर ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो या ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो केटू माउंट पे फिश का जो साइन है ये आपको बेइंतहा नॉलेज देता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम को भी आप सीख सकते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी आपको ज़रूर मिलेगा। शुरू में 25-30 साल की उम्र तक तो आपको बड़ी स्ट्रगल करवाएगा, लेकिन उसके बाद ये केटू माउंट पे ये साइन आपको बेतहाशा दौलत देगा। केटू माउंट पर फिश साइन सफ़र के लिहाज से और दौलत के लिहाज से इसको बहुत अच्छा माना गया और नॉलेज के लिहाज से भी। तो लोग उससे सवाल पूछते हैं कि सर मेरी जॉब हो जाएगी कि नहीं होगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी। अगर देखें यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ऊपर की तरफ निकले और यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बना दे, तो इसको जॉब के लिहाज से बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों की अच्छी जॉब हो जाती है और उस जॉब में ये लोग बड़ी तरक्की भी करते हैं। और अगर आपके पास किस्मत की लाइन बड़ी शानदार हो और उसके बाद यहीं से आपकी शोहरत की लाइन भी निकले, तो आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। और स्पेशली अगर ये किस्मत की लकीर भी ऊपर जाके 3 शाखा हो जाए और शोहरत की लाइन भी 3 शाखा हो जाए, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्लॉट वगैरह भी मिलेंगे और आप किसी बड़े इनके बहुत ज़्यादा आपकी प्रमोशन होगी और ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े मर्तबे पे भी अल्लाह ताला आपको फाइज करेगा अगर आपके हाथ में ये लकी साइन मौजूद है। हाथ वाला कहे कि जी मेरे कितने बेटे हो सकते हैं, तो चुप करके आप यहाँ पर लाइनें गिन लें। ये जो डार्क लाइनें हैं ये इसके बेटों की हो सकती हैं। तो तकरीबन जो ज़्यादा डार्क लाइनें हैं, बड़ी लाइनें हैं, वो तकरीबन 4 हैं और जो छोटी लाइनें हैं वो 2 हैं। तो तकरीबन 4 बेटे 2 बेटियां, इनके 6 बच्चे इसके ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ जो है ना आप इसकी औलाद को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये वीनस माउंट पर जो खड़ी लाइनें हैं यही औलाद का बता देंगी। तो इसको मैंने बड़ा आजमाया हुआ है। आप भी मुझे बताएं कि क्या आपके हाथ में जितनी मैं ये जो मेथड आपको बता रहा हूँ क्या आपके हाथ पर भी अप्लाई हो रहा है, क्या आपके जितने बच्चे हैं यहाँ पर आपकी इतनी लाइनें मौजूद हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। जब आपके पास अंगूठा भी लंबा हो, लंबा अंगूठा हो और उसके बाद अंगूठे पे यहाँ पे बुदाई बन रही हो और आपकी ये जो सन वाली फिंगर है ना ये आपकी इस बड़ी उंगली के बराबर हो, इतनी बड़ी हो,
तो फिर आपकी बड़ी लॉटरी, कोई बड़ा प्राइज बॉन्ड लग सकता है। और स्पेशली जब आपकी किस्मत की लकीर बड़ी शानदार हो और उस पर इस तरीके से लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हो और फिर मून माउंट से यहाँ से कुछ लाइनें इसके साथ, शोहरत की लाइन के साथ, बिजनेस की लाइन के साथ टच हो रही हो, तो बार बार ऐसे लोगों की बड़ी लॉटरी लग सकती है। ये इंतहाई मुबारक साइन है, इसको आप ज़रूर चेक करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको सन फिंगर भी बड़ी दी है, बल्कि ये वाली अगर फिंगर भी बड़ी होगी, तो आप ज़्यादा दिलेरी के साथ ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। जब आपकी ये तीनों उंगलियां एक जितने साइज की होती हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा दौलत देती हैं। ये इनकी शादी की लकीर है। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो इनकी मंगनी जो भी होगी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद इनकी जो शादी हुई है, शादी की ठीक लाइन के नीचे यहाँ पे एक काला तिल नजर आ रहा है। तो अब क्या ये तिल करेगा? तिल या तो इनका रुपए पैसे का नुकसान करवा देगा। अगर रुपए पैसे का इनका नुकसान नहीं होता, तो फिर शादी में प्रॉब्लम आएंगे, और बिल्कुल इनकी शादी में प्रॉब्लम आए हुए हैं। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है, तो इनकी शादी की लाइन के नीचे काला तिल बना हुआ है, और जैसे ही ये काला तिल बने, तो कुछ अरसे के बाद इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि तिल आपके हाथ में उस वक्त जाहिर होता है जब आपके साथ कोई बड़ा मसला बनने वाला हो, आप किसी प्रॉब्लम का शिकार होने वाले हो, तो उस वक्त तिल अचानक आपके हाथ में उभर आता है और जाहिर हो जाता है। अगर आपकी शादी की लाइन के नीचे आपको दो लाइनें बारीक बारीक इस तरीके से नजर आती हैं, और उसके बाद ऊपर जो डार्क लाइन है वो बड़ी क्लियर हो, तो आपके शुरू में दो रिश्ते तो लाजमी टूटेंगे। अगर आप मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत नाकाम हो जाएगी। अगर आप किसी के रिलेशन में होंगे, चाहे आपका रिलेशन वो 5 साल चले, 10 साल चले, वो रिलेशन आपका टूट जाएगा, 100% टूटेगा, किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। कामयाब वही होगा जहां आपकी ये शादी की लाइन बड़ी साफ होगी और इतनी लंबी होगी। इतनी लंबी अगर शादी की लाइन हो, उसको हम अच्छा मानते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी शादी की लाइनें जो होती हैं, वो कभी भी एक कामयाब रिलेशन नहीं आपका बना पाती। कमज़ोर होने की वजह से, छोटा होने की वजह से आपकी शादी में मसले बने रहते हैं, और कभी कभी आपकी शादी ब्रेक होने की तरफ भी चली जाती है। अच्छा जी, शादी की लकीर अगर टूटी हुई टहनी की तरह नीचे गिर पड़े यूं, तो अगर ये मर्द के हाथ में हो या औरत के हाथ में हो, तो उनका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो जो अजवाजी होते हैं तलकात, वो उनको सही तरीके से निभा नहीं पाता। कुछ ना कुछ वीकनेस औरत के हाथ में भी पाई जाती है, यानी कि औरत बांझपन का शिकार हो सकती है। और अगर मर्द के हाथ में ये शादी की लाइन हो या औरत के हाथ में हो, तो दोनों में से लाइफ पार्टनर में कोई ना कोई बांझपन का शिकार हो सकता है, उसके अंदर कोई वीकनेस हो सकती है, कोई ऐसा मर्ज हो सकता है जिसकी वजह से वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहता और जिनसी कमजोरी का शिकार हो जाता है। आपकी शादी की लकीर नीचे की तरफ गिरती है, यूं यूं नीचे की तरफ गिर जाती है। तो नीचे की तरफ गिरती हुई शादी की लकीर कभी अच्छी नहीं होती। होता ये कि कुछ अर्सा तो आपकी शादी जब चलती है, 6 महीने साल, तो शादी ठीक चलती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तल्कात खराब होना शुरू हो जाते हैं, मियाँ बीवी में दूरियां होना शुरू हो जाती हैं। चाहे आपके अपने रिश्तेदार ही आपकी शादी को ब्रेक करने की तरफ इनके लग जाएं, कोई तीसरा बंदा आपकी शादी को खराब करे, या आप दोनों मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो शादी की ये लाइन जो होती है, ये लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जाएगी। और स्पेशली अगर ये दो शाखा भी हो, तो फिर तो 100% ये डाइवोर्स का साइन है। फिर ऐसी शादी नहीं बचती मेरे ख्याल में। कि शादी की लाइन के शुरू में जजीरा हो, या ये शादी की लाइन जो है चली है और यहाँ पे शुरू में इस तरीके से जजीरा बना हुआ है। अगर शादी की लाइन में शुरू में आपको इस तरह जजीरा नजर आता है, ये जजीरा होता है, तो ऐसी लड़की की शादी बार बार जो है, पहली बात तो होती नहीं है। अगर हो जाए तो शादी बिल्कुल शुरू में ही ब्रेक होने का डर होता है, क्योंकि जब जजीरा बना होता है ना, तो इसको इंतहाई नेस साइन ये समझा जाता है। ये किस्मत की लाइन पे हो तो बिजनेस को तबाह कर देता है, जॉब खत्म हो जाती है इंसान की। और अगर ये शादी की लाइन के दरमियान में हो, शुरू में हो या आखिर में हो, तो ये शादी को तोड़ देता है। शादी में लड़ाई झगड़े और कभी कभी डाइवोर्स जो होती है, वो आपकी कोर्ट में जाके डाइवोर्स होती है। इतनी ज्यादा जिल्लत और बदनामी भी आपको देखनी पड़ सकती है।
शादी की लाइन बहुत ही बारीक हो, बहुत ही बारीक बारीक लाइनें आपको ऐसी नजर आती हैं। तो अगर इतनी लाइनें किसी मर्द के हाथ में बारीक बारीक हो या लड़की के हाथ में हो, और उसकी दिल की लाइन भी आप देखें तो वो भी जंजीरदार हो, तो ऐसे लोग किरदार के अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग अपना जो है ना वो फ्रेंडशिप करेंगे, फ्रेंडशिप ब्रेक करेंगे, फिर किसी के रिलेशन में जाएंगे। और क्योंकि इनका दिल जो होता है वो, ये बड़े मतलूल मजाज होते हैं, बड़ा चिड़चिड़ापन इनके अंदर पाया जाता है, शक्की वहमी भी होते हैं, नेगेटिव ज़हन के होते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में बार बार अपने रिलेशन तोड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और कभी भी शादी का फैसला नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कभी कभी सारी ज़िंदगी ये शादी नहीं कर पाते, और इनकी शादी फिर आखिर में बुढ़ापा इनका बड़ा दुखी होता है। बुढ़ापे तक इनके बुढ़ापे में भी इनकी शादी नहीं होती। ऐसा भी होता है कि आपकी मंगनी टूटने के बाद उसी शख्स के साथ दोबारा आपकी मंगनी हो जाती है, या आपकी शादी हुई है किसी इंसान के साथ, तो दोबारा उसके साथ आपकी जो है ना वो शादी हो गई है। तो इसका साइन क्या होता है कि पहली लाइन हो सकता है मदम हो या दो शाखा हो, तो जिसकी वजह से वो मसले बने, प्रॉब्लम बने, और आपका वो रिलेशन ब्रेक हो गया। लेकिन अगर इसी लाइन में से ये एक लाइन ऊपर वाली शादी की लाइन के साथ टच हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि पहली शादी की लाइन का और दूसरी शादी की लाइन का आपस में कनेक्शन बन गया है। तो आपकी दोबारा उसी शख्स के साथ शादी हो सकती है जिसके साथ आपकी डाइवोर्स हो गई थी, यानी कि तलाक के बाद उसी शख्स के साथ आपकी दोबारा शादी भी हो सकती है, और मोहब्बत नाकाम होने के बाद आपकी मोहब्बत वापस आपकी ज़िंदगी में आके आपको वापस मिल सकती है। ये उस चीज़ का बड़ा पावरफुल साइन है। अच्छा जी, ये होती है आपकी दिल की लकीर, और ये है आपकी शादी की लकीरें, ये आपकी शादी की लाइन्स हैं। ठीक है जी। ठीक इनके नीचे यहाँ पे अगर आपको 1, 2, 3 या 4 लाइनें नजर आती हैं, तो अगर ये लाइन बड़ी डार्क होगी और थोड़ी लंबी होगी तो ये आपके बेटों की लाइनें हो सकती हैं। देखिए, आमतौर पर आपको यहां पे बताया जाता है ना कि जो शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई लाइनें होती हैं, जो ऊपर की तरफ उठती हैं, ये बेटों की लाइनें होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर भी शादी की लाइन के साथ जो जुड़ी लाइनें होती हैं वो भी 100% बेटों का बताती हैं। जो छोटी हल्की लाइन होगी वो बेटी का बताएगी, और ये बैरूनी मंगल पे ये वाली लाइनें जो है ये भी बेटों की हो सकती हैं। यहां से भी आप औलाद को देख सकते हैं, ये भी औलाद की लकीरें हैं। देखिए, सैटर्न माउंट पर काले तिल का होना बिल्कुल किसी ने भी आज तक इसको अच्छा नहीं माना। सैटर्न माउंट पर ब्लैक अगर मोल होगा तो आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप बड़े जज्बाती इंसान होंगे, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, और कभी कभी ऐसे लोगों के इनके दिलो दिमाग में जब इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा मिले या इनके साथ कोई बहुत बड़ी चीटिंग हो, तो ऐसे लोग कभी कभी खुदकुशी का भी सोचते हैं। इनके दिल में खुदकुशी करने के ख्यालात भी आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर काला तिल, बुढ़ापा थोड़ा सा दुखी होता है ऐसे लोगों का। बुढ़ापे में या तो इसको अपने रिश्ते चीट कर देते हैं, या इसकी जॉब खत्म हो जाती है, या जो भी जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है वो 50 के बाद ज़ाया हो जाती है। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। सैटर्न पे काला तिल जो है इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, सदका देना चाहिए ऐसे लोगों को। आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आपके अंगूठे के नीचे ये जो लाइन बनती है, देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत ये जंजीर बनी हुई है, तो ये फैमिली रिंग होता है आपका। ठीक है, अगर ये फैमिली रिंग बिल्कुल बेहतरीन बना हो तो आपकी शादी बड़ी बेहतरीन चलेगी, लेकिन अगर इस पर काला तिल आ जाए तो आपकी शादी में मसले बन सकते हैं। आपका कोई औलाद की तरफ से आपको दुख मिल सकते हैं, आपकी औलाद बीमार हो सकती है, आपकी औलाद में से किसी की डेथ हो सकती है, या किसी बहुत अपने की, किसी बहुत प्यारे की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर ये साइन जो है ये इतना अच्छा नहीं माना गया, बल्कि काला तिल जो होता है वो कहीं पे भी अच्छा नहीं माना जाता। काला तिल जो होता है वो आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है, क्योंकि फैमिली रिंग से हम आपकी शादी की मजबूती को भी देखते हैं, तो आपकी शादी में भी मसले प्रॉब्लम बन सकते हैं अगर यहाँ पर काला तिल है तो। केटू माउंट पे ना, ये होता है आपका केटू माउंट, ये आपका केटू का एरिया है। अब केटू माउंट पर अगर आपको बड़ा ही खूबसूरत इस तरीके से एम का साइन बनता नजर आए और ये जिंदगी की लकीर इस तरीके से नीचे आए, तो ये साइन जो एम का साइन है, देखिए यहाँ पे जिंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा हो गई है, और फिर यहाँ पर फिर ये ऐसे एम का साइन बने, तो ये एम का साइन आपको फौरन
सेटलमेंट भी करवाएगा, यानी कि आप फौरन भी जाएंगे, ज़िंदगी में दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा, लेकिन ये उस वक़्त काम करेगा जब आपकी यहाँ पे बड़ी पावरफुल किस्मत की लकीर हो और शोहरत की लाइन भी हो। अब यहाँ पे एम का साइन तो है, लेकिन किस्मत की लाइन कमज़ोर है, तो उस लिहाज से इनको एम का साइन जो है कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। ज़्यादा फ़ायदा उस सूरत में होता अगर शोहरत की लाइन भी और किस्मत की लाइन अगर स्ट्रांग होती, तो फिर इनके पास बहुत ज़्यादा दौलत आती। फिंगर आपकी जितनी छोटी हो ना, इतना आपके जो रिलेशन है ना वो इतने अच्छे नहीं रहते अपने रिश्तों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और ये जितनी छोटी होती चली जाएगी इतना ही आप के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखेंगे। ज़्यादा लोगों के सामने अगर आपको बात करनी पड़ जाएगी तो हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं ऐसे लोगों के। अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखते हैं। अगर कोई फीमेल के हाथ में ये उसकी उंगली इतनी छोटी है तो वो ससुराल वालों के जुल्म खामोशी के साथ बर्दाश्त करेगी, अंदर ही अंदर कुड़ती रहेगी, रोती रहेगी, और अपनी प्रॉब्लम अपने वालिदैन को भी नहीं बताएगी, किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को वो ठीक तरीके से बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और ऐसे लोगों की शादी आम तौर पर मैंने तो दुखी देखी है। इनकी शादी में इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता। इनके हाथ में ना ये सेमियन लाइन बनी हुई है, तो सेमियन लाइन वाले बड़े जज्बाती लोग होते हैं। होता ये कि ये तकरीबन दिल और दिमाग की इनके हाथ में ये सीधी एक ही लकीर होती है। इनके दिल और दिमाग की एक ही लकीर है, और यहाँ से आप देखें तो ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे ये शादी की लाइन यूँ निकली है, और फिर यहाँ से ये गर्डल ऑफ वीनस नुमा, ये आप इसको दिल की दूसरी लकीर आप कह सकते हैं। तो ये क्या करेगी, असल में तो दिल की लाइन यहाँ से निकल के ये मुकम्मल बड़ी होती ना, अब दरमियान में ये टूटी हुई दिल की लकीर है और शादी की लाइन इसके साथ जुड़ी हुई है, और हाथ में ये सेमियन लाइन बनी हुई है। तो ये बंदे को इंतहाई ज़िद्दी बना देती है। ऐसे लोग बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, शादी अपनी तोड़ लेते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, ज़िद्दी होते हैं, जज्बाती होते हैं, और गुस्से में आके जज्बात में आके ये कभी कभी अपनी शादी को ख़राब कर देते हैं। यानी कि इनके अंदर ज़िद्दी को बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब दिल और दिमाग की एक ही लकीर हो, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रही है, दिल और दिमाग की एक ही लकीर है जो कि ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये होती है सेमियन लाइन। ऐसे लोग जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर अलग अलग शुरू होती है ना, उस सूरत में तो आप डिसीजन लेते हुए बड़ा मियाना रवि से काम लेते हैं, बड़ा सोच समझ के ज़िंदगी के डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब दिल और दिमाग की एक ही लकीर हो, तो फिर ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़िद्दी होते हैं, जज्बाती होते हैं, और कभी कभी इनकी जो दिल की लकीर हो सकता है ये यहाँ से निकल जाए, या दिमाग की लकीर यहाँ से निकल जाए, या इसी लाइन के ऊपर आपको एक ऐसे एक छोटी सी दिल की लाइन नज़र आए, तो ये और यहाँ पर ये शादी की लाइन इसके साथ इसको ऐसे काट दे। तो ऐसे लोगों की शादी मैंने बहुत कम चलते देखी है। शादी में प्रॉब्लम मसले ज़रूर बनते हैं। एक फीमेल है, इनकी पहली दोनों शादियां टूट गई थी। तो शादियां टूटने का क्या साइन होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यके बाद दिगरे इनकी दो शादियां ब्रेक हुई हैं। पहली इस लाइन ने इसको ऐसे काटा है, पहला रिलेशन इनका टूट जाएगा। इनकी अगर आपकी मून माउंट से कोई लाइन शादी की लाइन को काटती है ना, तो इनका पहला रिलेशन भी टूट गया, और दूसरी लाइन ने भी ऐसे काट दिए तो इनका दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हो गया। इनके शादी के कुछ 6 माह के बाद इनको खुला लेना पड़ गया कि वो इनका जो हस्बैंड था वो नशा करता था, अच्छा इंसान नहीं था। तो इनकी पहली दोनों शादियां ब्रेक हुई हैं, और तीसरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कामयाब हुई है। अल्लाह का बड़ा करम है इन पे। अब ये माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेल पाम है, ये एक लेडी डॉक्टर है, इनका पाम है। तो इनके साथ एक बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। इनके भाई ने जो है ना पैसा इनका था सारा, तो इनके भाई ने इनसे सारी जो घर था उससे भी निकाल दिया जब घर बन गया, हालांकि पैसा सारा इन्होंने लगाया था। तो उसने फ्रॉड करके वो मकान पर भी कब्जा कर लिया, और इनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई। तो जब आपके इस बैरूनी मंगल पे इस तरीके से लाइन किस्मत की लाइन को काटे, या आपकी दिमाग की लकीर यहाँ से बैरूनी मंगल की तरफ उठ जाए, तो और यहाँ से कुछ लाइनें बैरूनी मंगल की तरफ आ जाएं, तो आपको 100% कोर्ट केस देखना पड़ता है। और अभी इनका कोर्ट केस चल रहा है, और बस अभी उसका फैसला होने वाला है। उम्मीद है कि फैसला इनके हक में हो जाएगा। लेकिन ये कोर्ट केस का बड़ा पावरफुल साइन है जो मैंने आपको बताया है। लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन बहुत ही टूट टूट के चले,
यूं देखे चली है, फिर टूटी है, फिर चली है, फिर टूटी है, तो फिर क्या होगा? और ये राहु लाइनें इसको ऐसे काट रही हों, तो जिंदगी तकरीबन दुखों में ही गुजरती है। यानी कि ये सारी मुसीबतों की लाइनें, ये राहु लाइनें होती हैं। तो 24-25 साल की उम्र में प्रॉब्लम, फिर 27-28 साल की प्रॉब्लम, फिर 32 साल की एज में, फिर 35 साल की एज में, फिर 40 साल की एज में, और फिर 45 पे भी जाके प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी, 47-48 पे भी इनको प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी। तो आप देख लें, सारी ज़िंदगी इन्होंने कोई सुख का सांस नहीं लिया। अगर कोई 5-6 माह या साल कोई थोड़ा सा सुख मिला भी है, तो उसके बाद फिर कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी परेशानी इनको मिल जाती रही है। तो राहु लाइनें जो होती हैं वो हमें बहुत दुख देती हैं, हमें हमारा रुपए पैसे का नुकसान करती है और हमें ज़हनी टेंशन भी देती है। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।